Hello my dear children, welcome to class 8 Periwinkle, a book of science and technology. Today we are going to start with 13th chapter, that is more about light. So let's see the learning outcomes. These include discuss reflection of light, define a periscope, define dispersion of light, describe the defects of human eye and their correction, describe image formation by a plane mirror, explain multiple reflections, explain the structure of human eye. So children, light is actually a form of energy that enable us to see. अगर आपका विजन बिल्कुल ठीक है और फिर भी आपको एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ पे कोई भी लाइट का सोर्स ना हो, तो क्या आप उस रूम में मूव कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर लाइट प्रेजेंट नहीं है। और कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो वो हमें तभी दिखेगी जब वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We see any object when light after reflection from object reaches our eyes. The process of sighting requires an object, presence of light and an eye of other observer. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी लाइट खुद देते हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सन, स्टार्स, बल्ब, ट्यूबलाइट। तो जो अपनी लाइट अपने आप से दे रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एंड दोज ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव लाइट ऑफ देयर ओन, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। The objects that give off light of their own are called as luminous objects. The sun, stars, glowing bulb, burning candle, glowworms, fireflies are some examples of luminous objects. वहीं जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट नहीं देते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मटीरियल लाइक एयर, वाटर एंड ग्लास, ये कौन से मटीरियल होते हैं बच्चों? ये अपने थ्रू लाइट को पूरी तरह पास होने देते हैं, इसीलिए इन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटीरियल कहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बटर पेपर की या फ्रॉस्टेड ग्लास की, तो वो लाइट को अपने थ्रू पार्शियली पास होने देते हैं, इसीलिए उन्हें हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। और वहीं अगर हम बात करें वुड की, डोर की, कबर्ड की, तो ये अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देते उनको हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो अगर आपने अपने घर में, जैसे आप अपनी इमेज देखते हो, आप कहाँ देखते हो अपनी इमेज? मिरर में देखते हो। तो मिरर में आपको क्या दिखाई देता है? आपको अपनी रिफ्लेक्टेड इमेज दिखाई देती है। Mirror are used in our homes, in shops and in cars. When we hold a plane mirror in sunlight, we get a patch of light on the wall opposite to the mirror. This is due to reflection of light by the mirror. Thus, phenomenon of bouncing back of light in the same medium after striking a surface is called reflection of light. तो reflection क्या होता है बच्चों? Reflection of light is bouncing back of light in the same medium after striking a regular surface, इसे ही हम बोलेंगे reflection. If light traveling in one medium is sent back to the same medium after striking the second medium, it is said to be reflected. Reflection of object in a mirror forms an image. Take a torch and direct it light on wall. अगर आप टॉर्च की जलाते हो और उसकी लाइट को आप वॉल पे डायरेक्ट करते हो, it produces a patch of light on the wall. आप देखते हो कि एक लाइट का पैच बन जाता है। Now place a plane mirror such that light of the torch falls on it. तो आप क्या देखोगे कि position of patch जो है वो change हो जाता है। It shows that direction of beam of light changes after striking the mirror. Tilt the mirror slightly to either side without changing the direction of beam of light. You will find that in every situation direction of beam of light changes in a definite direction. तो अगर आप मिरर की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे और लाइट सोर्स को चेंज नहीं करेंगे तो भी हमें डायरेक्शन ऑफ लाइट में चेंजेस दिखाई देंगे। Now let one of your friends stand at a place where the patch of light formed by the mirror falls directly on the eye. Ask your friend to try to locate the source from where the light appears to come. Now exchange your position. You will find that it appears as if the torch is placed behind the mirror. तो मिरर में कैसी इमेज बन रही है बच्चों? वर्चुअल इमेज बन रही है जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। The torch that appears behind the mirror is called the image of the torch.
This phenomenon of change in direction of light from a polished surface is called reflection. तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो पहली है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे वो रे ऑफ लाइट है जो कि सोर्स से चलती है एंड इट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है? द रे ऑफ लाइट दैट गेट रिफ्लेक्टेड आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जैसे कि ये देख सकते हो, जो सोर्स से लाइट आके हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. और जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से निकल गई इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. और इनके बीच में हम जो लाइन बनाते हैं विच इज एट 90 डिग्री फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसे हम बोलते हैं नॉर्मल. तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बच्चों एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली एक एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और हम क्या नोटिस करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. To demonstrate the image formation in a plane mirror, stand in front of your dressing mirror and look yourself into it. Move back and forth. Look at your image of various objects around you. Now try to find the answers to this question. Do you notice any change in size of object or their image formed in the mirror? दूसरा क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे? डू यू सी स्टैंडिंग अपराइट और योरसेल्फ इन्वर्टेड विद द हेड डाउन एंड योर फीट पॉइंटिंग अपवर्ड? क्या ऐसा होता है जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो? डज योर इमेज ऑल्सो सीम्स टू मूव व्हेन यू मूव बैक एंड फोर्थ? यू विल फाइंड द फॉलोइंग आंसर्स ऑफ द अबव क्वेश्चन. पहले का आंसर ये रहेगा बच्चों कि जो साइज, जितने साइज के आप हैं वही सेम साइज मिरर में भी दिखाई देगा. मतलब कि आपका इमेज का जो साइज है वो सेम रहेगा. द इमेज साइज एंड द ऑब्जेक्ट साइज आर द सेम. यू सी योरसेल्फ स्टैंडिंग अपराइट मतलब हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है. योर इमेज सीम्स टू मूव क्लोजर. हम जब मिरर के पास की तरफ को जाते हैं तो हमारी इमेज क्लोजर हो जाती है और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं ऐसे ही हमारी इमेज का डिस्टेंस भी इंक्रीज करता रहता है. We consider the following ray diagram. Here an object O is placed in front of the plane mirror. तो यहाँ पे हम देखते हैं एक प्लेन मिरर है PQ और एक ऑब्जेक्ट है O. इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, दैट मीन्स दिस इज द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गई C की फॉर्म में. सिमिलरली B से यहाँ से BD जो है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. तो हमें ऐसे लगेगा जब हम इसको देखते हैं कि ये दोनों के दोनों एक पॉइंट I से आ रहे हैं, बट एक्चुअली मिरर में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट नहीं करती हैं. Observing the law of refraction, the incident ray get reflected from the mirror PQ in direction AC and BD. When seen from point position between C and D, the rays AC and BD appear to come from same point I behind the mirror, but actual में ये meet नहीं करती हैं. But only appear to do so. So we say कि इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल इमेज बनी है. इमेज हमारे स्क्रीन के पीछे बनी है, मिरर के बिहाइंड बनी है, इसलिए इस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेज बच्चों हमेशा इरेक्ट होती है. From this activity we find the following characteristics of image. The distance of image formed in the mirror is equal to the distance of object in front of the mirror. If object is near the mirror, image भी near होगी. Object दूर होगा तो image भी दूर बनेगी. Thus, by placing the object at different places, we can form the image of an object. The image formed is virtual. Virtual image क्या कौन सी होती है? Which cannot be obtained on a screen. तो हमें हमारी जो इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही है, इसलिए जो इमेज बनी है वो है वर्चुअल इमेज. और जो इमेज हमें स्क्रीन पे मिलती है उसे हम बोलते हैं रियल इमेजेस, जैसे कि हमारी लेंसेज और स्फेरिकल मिरर्स में बनती है. द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है बच्चों? कि द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट और लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयर करता है राइट हैंड साइड पे. सो दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन ऑफ इमेज को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. The image formed is erect and of same size as that of object. To learn about lateral inversion, take a white sheet
of paper and write the word THGIL and try to read the image formed in a plane mirror. तो आपको क्या लगेगा कि ये वर्ड्स हमें उल्टे दिखाई देंगे. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. चिल्ड्रन, दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है. एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है जब हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ होता है, पॉलिश्ड होता है, मतलब सरफेस जो है वो बिल्कुल रेगुलर होता है. तो जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल ट्रैवल करती हैं. और इररेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जब हमारा जो इंसिडेंट रेज हैं वो स्ट्राइक करती हैं एक रफ सरफेस से. तो इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल नहीं रिफ्लेक्ट होंगी, दे विल स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड सो इट इज कॉल्ड एज इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, रेज आई पैरेलल एंड दे आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल. लेकिन इस केस में रेज तो पैरेलल आ रही हैं लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं. Reflected light can be reflected again. The phenomenon of ray of light getting reflected more than once is called as multiple reflection. The number of image formed is same as the number of times light get reflected. तो multiple reflections बच्चों हमें पेरिस्कोप में देखने को मिलते हैं, कैलिडोस्कोप में देखने को मिलते हैं. तो पेरिस्कोप क्या होती है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि ट्वाइस बेंड होती है एट राइट एंगल. Two plane mirrors are fixed at an angle of 45 degree at the frame. तो इस केस में आप देखो यहाँ पर हमारे पास एक लंबी सी ट्यूब होती है which is like this. इस तरीके की ट्यूब होती है और यहाँ 45 डिग्री के एंगल पर हमारे मिरर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. The rays of light traveling from the object to be seen fall on the first mirror from where they are reflected. तो पहले लाइट अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पहले एक मिरर पे स्ट्राइक करेगी, फिर दूसरे मिरर से स्ट्राइक करके हमें वहां उसकी इमेज दिखाई देगी. लाइट फ्रॉम द सेकेंड मिरर इज रिसीव्ड बाय द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर. Periscope helps submarines in viewing other bodies located at different level. They are widely used in submarines during wars. देख सकते हैं आप, ये है हमारा पेरिस्कोप. पेरिस्कोप में यहाँ पर हमें दो मिरर्स प्रोवाइड होते हैं जिनसे हम इमेजेस को देख सकते हैं. दूसरा आता है हमारा क्लीडोस्कोप. ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन अ मिरर में हम इसमें देख सकते हैं. यहाँ पर जो मिरर की पोजीशन होती है दे आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री एंगल. डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट. चिल्ड्रन, आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है ना? तो क्या होता है, वेयर डू दीज डिफरेंट कलर्स कम एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट. सनराइज के टाइम पे आपको लाल रंग दिखाई देता है, सनसेट के टाइम पे आपने देखा है कि सन का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है. तो ये सारे कलर्स कहाँ से आ रहे हैं? द आंसर टू दीज क्वेश्चन इन्वॉल्व्स द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. एक्चुअली बच्चों, जो सन की लाइट होती है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स और ये 7 कलर्स जब एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं तो दे मेक द व्हाइट लाइट. आप ये काम अपने घर में भी करके देख सकते हैं. आप एक प्लास्टिक का रूलर लेंगे और उससे अपने घर में ट्यूब लाइट को देखने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि व्हाइट लाइट को आप देख रहे हो, व्हाइट लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी. दिस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन. Bright blue of the sky and the red and orange of sunrise and sunset are the result of white light from the sun being separated into different colors. The phenomenon of splitting of white light into 7 components of color is called as dispersion. और डिस्पर्जन के बाद ये जो बैंड ऑफ कलर्स हमें मिल रहा है स्क्रीन पे, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. तो इसके अंदर कितने कलर्स हैं? इसके अंदर 7 कलर्स हैं जिनको हम लिखते हैं विबग्योर की फॉर्म में. V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड. तो इस सीक्वेंस में हमें ये कलर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं. प्रिज्म बच्चों एक टाइप का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 ट्रायंगल्स जो होते हैं वहां से रिफ्लेक्शन शो होता है. अगर हम प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं और यहाँ पर हम एक स्क्रीन लगाते हैं तो हमें यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट इजीली देखने को मिलेगा और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा ऑफ बैंड ऑफ 7 कलर्स. Rainbow is a natural phenomenon which exhibits dispersion. A prism splits up light, entering into it different light waves that we see as different colors.
इन अ रेनबो द सनलाइट स्प्लिट्स अब ड्यू टू रेन ड्रॉप्स। तो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, रेन के टाइम में जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो एक्ट करती हैं एज प्रिज्म, और उनमें से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से हमें रेनबो के कलर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चिल्ड्रन, अभी तक हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अगर वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है तो हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हमारे पास दो मीडियम प्रेजेंट हो तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन शो करती है। तो लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाती है। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है एयर से वाटर में, तो एयर मीडियम जो हो गया ये रेयर मीडियम हो गया और वाटर हो गया हमारा डेंसर मीडियम। इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, है ना। तो इससे जब लाइन जो है हमारी रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल के पास होती है तो इसे हम बोलते हैं, क्या हो रहा है? रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और वहीं अगर वाटर से एयर में जा रही होती, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही होती, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड दिस फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स इज डिफरेंट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स अलोंग द नॉर्मल। अगर हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल के साथ ही चल रही है, जैसे कि दिस इज द मीडियम, ये हमारा एयर है, ये हमारा वाटर है, तो ये हमारे दो मीडियम्स चेंज हो गए। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल पे ही स्ट्राइक कर रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, उसी पाथ में वापस लौटा दी जाएगी, देयर इज नो डेविएशन। लेकिन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ओब्लिकली फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और वहीं अगर हमारी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आप देख सकते हो कि नॉर्मली ट्रैवल कर रही है, इट विल रिट्रेस इट पाथ। लेकिन इंसिडेंट रे आई, रेयर से डेंसर में गई, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर हमारे डेंसर से रेयर में गई इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से भी बच्चों हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। दो मीडियम में चेंज हो गया, एयर से गई ग्लास में, तो क्या हुआ? एयर रेयर मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब ग्लास से एयर से बाहर वापस आई तो फिर मीडियम चेंज हो गया, डेंसर से रेयर हो गया, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Human eye. Children, human eye is a sense organ. It is spherical and slightly flattened from back to front to back. The walls of the eye is composed of three distinct layers. तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं हमारी आंखों में। एक होती है स्क्लेरा, एक को हम बोलते हैं कोरॉइड, और तीसरी है हमारी रेटिना। तो स्क्लेरा जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई है। ये ज्यादातर वाइट होती है एक्सेप्ट इन द फ्रंट ऑफ द आई, जहां ये ट्रांसपेरेंट होती है और फॉर्म करती है कॉर्निया। यहीं पर एक वाटरी लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। द कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चिल्ड्रन, हमारी आंख में क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है फॉलिंग ऑन द आई। आप यहाँ पे आई का स्ट्रक्चर इजीली देख सकते हैं। देयर इज अ स्मॉल अपर्चर इन द सेंटर बिहाइंड द कॉर्निया। तो कॉर्निया के पीछे एक छोटा सा अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपल, और प्यूपल जो है वो सराउंडेड होता है एक मस्कुलर डायफ्राम से जिसको हम बोलते हैं आइरिस। ये आइरिस ही है जो हमारी आंख को कलर प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज, ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है ये प्यूपल में से मूव करेगी। तो जब हम किसी ब्राइट लाइट में जाते हैं तो आप क्या करते हो? आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो ना। तो इसका मतलब क्या है? आइरिस जो है वो प्यूपल के साइज को रिड्यूस कर देता है, वो एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से प्यूपल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, ताकि कम अमाउंट में कम इंटेंसिटी की लाइट जो है वो हमारी आंख के अंदर जाए। और जब हम डिम लाइट में देखते हैं तो हम बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं, तो इस टाइम पे आइरिस जो है ये कंट्रैक्ट करता है ताकि प्यूपल को ये एक्सपैंड कर सके, प्यूपल जो है इसको ये एनलार्ज कर सके ताकि मोर अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर इनटू द आई। When the light enters the eye through pupil, it falls on eye lens.
which is a jelly-like transparent material made up of protein। और कॉर्निया और आई लेंस के बीच में बच्चों एक फ्लूइड फिल होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। Eye lens focuses the light passing through it on the retina, a light sensitive screen. There is a thick jelly like substance called as vitreous humor। और यहाँ पे vitreous humor नाम का एक thick jelly like substance present होता है जो आंख को उसके स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। Choroid, it is the middle layer that encloses the eye except in front to prevent internal reflection of light। It is well supplied with blood vessels। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में blood vessels जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। Eye lens is held by ciliary muscles। तो जो हमारी आई की जो लेंस है उसको होल्ड करके रखने का काम करती हैं ciliary muscles that lie just behind the pupil and fasten to the choroid layer। Other than holding the eye lens, the ciliary muscles adjust the focal length of the lens by either stretching it and making it thin to increase its focal length or by contracting it and making the bulge to decrease the focal length। इसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट जो आता है आई का वो होता है रेटिना। तो रेटिना जो है यहाँ पर हमारे दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी लाइट हमारी आंख में फॉल करती है वो रेटिना पर ही जाकर इमेज बनाती है, फिर इस इमेज को ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन तक लेकर जाती है और ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हमें क्या देखना है। तो जो हमारी रेटिना है यहाँ पे दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं रॉड्स और दूसरों को बोलते हैं हम कॉन्स। यही वो सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं लाइट के, और इस सिग्नल को कौन लेके जा रही है? ऑप्टिक नर्व लेके जाती है ब्रेन तक। द कोन सेल्स आर एक्टिव व्हेन लाइट इज ब्राइट। तो जो कोन्स हैं वो हमें ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, वहीं जो रॉड्स होते हैं ये हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। There is a region in the retina that lies in front of the optic nerve, और इस एरिया में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इज विदाउट कोन एंड रोड्स एंड हेंस विदाउट विजन। तो यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट है इसमें कोई भी टाइप का विजन जो है वो नहीं होता है। विजन किसकी वजह से होता है? रेटिना की वजह से। वहां पे दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, एक जो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोन्स, while rods are active when the light is dim। Power of accommodation. The eyes allow us to focus the image of all objects on retina irrespective of their distance from the eye। The power of eye lens to change its focal length is called power of accommodation। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आई लेंस जो है वो थिक हो जाती है जब हम ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं जो हमारे बहुत पास हैं आँख के, और आई लेंस हमारी थिन हो जाती है जब हमें कहीं दूर की चीज देखनी होती है। तो A normal eye cannot see objects placed at a distance less than 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन। इससे कम अगर डिस्टेंस होगा तो चीज हमें साफ साफ नहीं दिखाई देगी। Because at this distance the action of ciliary muscles that help in contract or relax and objects appear hazy। To view distinct objects such as moon or stars at night, the eye lens, अब eye lens कैसी हो जाती है? थिन हो जाती है। थिन हो जाती है तो वो क्या करती है? वो फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देती है ताकि हम इजीली दूर की चीजें देख सके। और वहीं अगर हमें पास की चीज देखनी है तो आई लेंस कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है। थिक हो जाती है और फोकल लेंथ को वो डिक्रीज कर देती है ताकि हम पास की चीज इजीली देख सके। फॉर ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, मतलब हम बहुत दूर तक चीजें साफ जो हैं वो देख सकते हैं, और नियर पॉइंट इज द डिस्टेंस एट विच आई कैन सी क्लियरली अ ऑब्जेक्ट। Science in context, the image of an object persists at our retina for 1/16th of a second even after the removal of object. This property of eye is called as persistence of vision। Now defects of eyes. Children, first defect is called as short sightedness और myopia, जो कि ज़्यादातर हम बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें बच्चे दूर की चीज़ को साफ नहीं देख पाते। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाती है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो हमें ब्लर दिखाई देता है। तो इसके करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो होती है बच्चों ये एक डाइवर्जिंग लेंस होती है जो रेस को डाइवर्ज करके आई लेंस पे डालती है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है रेटिना पे। लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। चिल्ड्रन, हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट ऑफ आई है ये हमें बड़े लोगों में देखने को मिलता है जब लोग पास की चीज़ों को साफ नहीं देख पाते हैं।
तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बनती है रेटिना के पीछे, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता। तो इसका करेक्शन हम करते हैं बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसी होती है? ये कन्वर्जिंग लेंस होती है जो कि लाइट रेस को कन्वर्ज करके डालती है आई लेंस पे, फिर उसकी इमेज बनती है रेटिना पे। Among many old people, the eyesight become foggy due to eye lens becoming cloudy. तो इस कंडीशन को बच्चों हम बोलते हैं cataract. This can be treated by removing the opaque lens and inserting a new artificial lens. केयर ऑफ आईज। बच्चों आईज जो हैं हमारे विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमें अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। A person maintaining required amount of vitamin A in the diet can protect and take care of the eyes. तो विटामिन ए जो है ये हमारी डाइट में ज़रूर होना चाहिए ताकि हम अपनी आईज को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी केयर कर सकें। Some of the necessary ways to take care of eyes are clean and wash your eyes. अपनी आंखों को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए ठंडे पानी से, at least twice or more than a day. Avoid reading or studying in dim light. कभी भी dim light में रीड नहीं करना चाहिए। Moving vehicles में हमें रीड नहीं करना चाहिए। लेट के कभी नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को, हमेशा टेबल चेयर पे ही बैठ के प्रॉपर लाइट के अंदर ही बच्चों को पढ़ना चाहिए। Avoid using coarse cloths or pointed objects to clean eyes. They can scratch or damage the cornea. Avoid working for long hours in front of a monitor screen of computer. और ऐसा है भी, अगर आपको बहुत देर तक भी काम करना है तो बीच में हमें थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें हमें आइज़ की एक्सरसाइज करनी चाहिए या आइज़ को क्लोज ही कर लेना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, आंखों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। The emitting radiation from them can damage your eyes. In case of any dust particles enter your eyes, हमें कभी भी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए। The tears will remove the particles on their own. Rather wash the eyes with cold water. Once in 6 months, visit a ophthalmologist to have a proper checkup of your eyes. तो हमें डॉक्टर के पास 6 महीने के अंदर एक बारी अपनी आइज़ का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। In case of any injury or defect, consult an ophthalmologist and opt for required treatment. Science in context. Unfortunately, there are few people who are visually challenged or have very limited vision to see the worldly things. Some of them are totally blind right from the birth, whereas some of them lose their eyesight due to some illness or otherwise. These peoples have no alternative but identifying things by touching and listening to voices, with more care enabling them to develop their own senses more sharply. Braille system. Louis Braille in 1829 developed and published his first book for blind people consisting of raised symbols to allow blind people to read and write. तो ब्रेल क्या होती है आपकी? ब्रेल जो एक लैंग्वेज होती है, इसमें पेपर होता है और उसमें कुछ वर्ड्स उभरे होते हैं जिनको हाथ से टच करके ब्लाइंड पीपल हैं वो रीड और राइट कर सकते हैं। Later in 1837 he revised his book and added more symbols covering music and mathematics. Nowadays almost in all languages there is Braille script consisting of raised dots that allow blind people to read and write. The raised dots give an idea to a person about the alphabets, number or punctuation marks. The system consists of raised dots in different configurations representing different alphabets, numbers and punctuation marks. Helen Keller, an American lady, has been an inspiration for many visually challenged people. She lost her sight when she was just 18 months old. However, she overcame her physical disabilities with sheer courage and determination. She not only completed her graduation but also authored a number of books including The Story of My Life. Eyes of some animals. Animals also have eyes to see things around them, but the shape and vision ability of animals are well suited to their lifestyle. जैसे कि अगर हम एक ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो उसकी आंखों में अबाउट 30,000 लेंसेज होती हैं, और वहीं एक कैमेलियन की बात करें तो इट कैन सी इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस एट सेम टाइम बिकॉज इट्स आईज कैन मूव इंडिपेंडेंटली.
Butterflies have large eyes that have thousands of little eyes that enable them to see in front and back. और ऐसी आँख को हम बच्चों बोलते हैं compound eye. An owl can see very well in dark because it has large cornea. इसका जो cornea होता है ये बहुत large होता है and large pupil होता है to allow the more light to enter its eye. It has large number of rods. आपको याद है ना कि rod cells किस में help करते हैं हमें to see in dim light. इसीलिए इनकी बॉडी के अंदर, इनकी आंखों के अंदर रॉड्स जो हैं वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं. एंड ओनली फ्यू कोन्स ऑन द रेटिना. डे बर्ड्स लाइक काइट्स हैव मोर कॉन्स. तो जो डे बर्ड्स होती हैं उनमें कॉन्स की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रॉड्स. Now see the new words. Light, a form of energy that causes sensation in our eyes to see things. Reflection of light, bouncing back of ray of light after it strike from the surface. Reflection of light, deviation of rays of light when it passes from one medium to another different medium. Multiple reflection, phenomenon of a light ray getting reflected more than once. Dispersion, the process of splitting of white light into its constituent colors. Periscope, an instrument that works on the principle of multiple reflection. Power of accommodation, the ability of lens of the eyes to adjust its focal length by its own. Short-sightedness, the defect of eye due to which a person can see nearby objects clearly but distinct objects become blurred. Long-sightedness, the defect of eye due to which a person can see distinct objects clearly but पास के जो objects हैं वो blur हो जाते हैं. Wrap up. When a ray of light falls on a mirror or any surface, it bounces back in the same medium. This phenomenon is called as reflection of light. The image formed by a plane mirror is of same size as the object and always upright. Image formed in a plane mirror undergoes lateral inversion. Two mirrors inclined to each other gives multiple images of the object placed between them. Periscope and kaleidoscopes are instruments which works on the principle of multiple reflection. Splitting of light into constituent colors is called as dispersion. Phenomenon of diverging a ray of light when it enters from one medium to another medium is called refraction of light. We are able to see when light from one object falls on the retina of the eyes. Myopia and hypermetropia are eye defects that can be corrected by wearing lenses. We must take proper care of our eyes. Now see the exercise, children. See the first one. The angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is called as law of reflection. The part of eye that behaves as screen is retina. Blindness can occur due to severe deficiency of vitamin A. A ray of light which enters back into the same medium after reflection is called reflected ray. बाकी के parts आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. We can see a non-luminous object when light is reflected from the object towards our eyes. When the eye lens becomes cloudy, a person suffers from cataract. A tiny mirror M is fixed on a piece of cardboard placed on table. Cardboard is illuminated by light from a bulb. The position of eye with respect to position of bulb is shown in the following figure ABCD. Which position mirror will be visible? तो mirror हमें किस position में visible होगा बच्चों? Mirror हमें B position में visible होगा. So you will write this one here. Eyes of owl has large number of rods. According to second law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. बाकी के parts आप अपनी practice notebook में बच्चों practice करेंगे. Now see the fill in the blanks. Bouncing back of light in the same medium is called reflection. Two mirrors inclined to each other give multiple images. Dash light is made up of 7 colors. White light. Rods and cones are present on the retina.
A periscope works on the principle of reflection of light. Sunlight is made up of 7 colors. The phenomenon of splitting of white light is called dispersion. बाकी के पार्ट्स आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. State whether true or false. Regular reflection of light takes place from a rough and uneven surface. This is false. Angle of incidence is always greater than angle of reflection. Again, this is false. Image formed by a plane mirror are erect. Yes, this is true. Sunlight consists of 7 colors. Again, this is true. Cornea controls the amount of light entering the eyes. No, this is false. In periscope, each of the 2 plane mirror is placed at an angle of 180 degree. This is false. A prism is used in a kaleidoscope. No, this is again false. Rainbow is seen in the east during the morning. No, this is false. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.